નમસ્તે. Then it's okay. મિત્રો, આપણી વચ્ચે એવા મહાનુભાવ છે કે જેમણે પોતાની પ્રોફેશનલ લાઈફ ને સમર્પિત કરી દીધી મિશન માટે, ન્યોછાવર કરી દીધી. ન્યોછાવરી જે છે એ મિશન માટે જ હોઈ શકે. શ્રીનંદનજી મુખર્જી સાહેબ આપણી વચ્ચે છે. 98માં આમ પોતે મૂળ કલકત્તાના છે, બંગાળના છે. બંગાળે ઘણા સપૂતો આપ્યા છે. એમના પરદાદા હાવડા બ્રિજની ડિઝાઇન એમના પરદાદાએ બનાવેલી. ખૂબ મોટું રિયાસતી કુટુંબ એમનું, જાગીરદાર કુટુંબ જેને કહેવાય. એ કુટુંબમાં એ મોટા થયા. યુકેમાં ભણવા પણ ગયા. 98માં IRS ટેસ્ટ કેસ માટે સિવિલ સર્વિસીસ આપી હતી અને એ ટેસ્ટ કેસ સફળ થયો. ગયા નહીં. એટલા માટે ન ગયા કે એમણે એમનું જીવન શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનને, સ્વામી વિવેકાનંદને સમર્પિત કરી દીધું. અને આપને જાણીને તાજ્જુબ થશે કે કચ્છમાં અત્યારે રામકૃષ્ણ મિશનની જે પ્રવૃત્તિઓ થાય છે એ પ્રવૃત્તિઓ પૈકી ઓન ટુ ધી લાસ્ટ જે લોકો છે એમને શિક્ષિત કરવાની એક્ટિવિટી સાથે તન, મન અને ધનથી જોડાયેલા છે. 39 સ્કૂલ્સ, 39 સ્કૂલ્સ કચ્છમાં એ ચલાવી રહ્યા છે અત્યારે. એમની બાજુમાં જે સાહેબ બેઠા છે એટલે બધી વાત કરશે. આપણને સ્ટ્રેસમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું પરીક્ષાઓના સંદર્ભમાં, જીવનના સંદર્ભમાં, મિશનના સંદર્ભમાં, જીવન મિશનના સંદર્ભમાં. અલબત્ત હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં કહેશે વધારે. બાજુમાં જે સાહેબ બેઠા છે બહુ મોટા ગાંધીધામના ખૂબ મોટા વેપારી છે, ખૂબ મોટા બિઝનેસમેન છે. એમણે પણ એમનું જીવન તન, મન અને ધન ગાંધીધામથી સ્પેશિયલ આવ્યા છે અત્યારે આપણા માટે થઈને. પ્રમેશભાઈ વેદ છે, એ તો ગુજરાતી જ છે પણ રામકૃષ્ણ મિશનને સમર્પિત છે. તો તમારામાંથી જે જૂના મિત્રો અત્યારે છે અહીંયા, એમણે કદાચ એમને જોયા હોય દશેરાને દિવસે. દશેરાને દિવસે આપણું શસ્ત્ર પૂજન જે થયું એમાં રામકૃષ્ણ મિશનના એક સંન્યાસી આપણી વચ્ચે પધારેલા અને બીજા એક સંન્યાસી આવી રહ્યા છે અત્યારે, હમણાં જ આવશે. અમદાવાદના જે હેડ સ્વામીજી હતા એ આપણી વચ્ચે હતા. અને એક ભારતસિંહજી ગોહિલ ભારોલી વાળા સ્વાધ્યાયી, પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજીના અનુયાયી, એ ભારતસિંહજી ગોહિલ પ્રવેશભાઈને અને સ્વામીજીને આપણા વતીથી અહીંયા નિમંત્રિત કરીને લઈ આવેલા. બટ કોઇન્સિડન્ટલી ભારતસિંહજીની ભાષા એટલે મળદા બેઠા કરી દે સાહેબ. પણ જે મળદા બેઠા કરી દે એને મળદું તો એક દિવસ થવું જ પડે. આજે સવારમાં પ્રમેશભાઈએ જ સમાચાર આપ્યા સૌથી પહેલા કે ભારતસિંહજી હવે આપણી વચ્ચે નથી. આજે સવારમાં જ એમને વિદાય લીધી.
એટલે સૌ પહેલા તો આપણે 2 મિનિટ માટે ભારતસિંહજીના આત્મા માટે પ્રાર્થના કરશું અને પછી આપણું કામ ચાલુ કરશું. લેટ અસ સ્ટેન્ડ અપ અને 2 મિનિટ માટે એમને મૌન શ્રદ્ધાંજલિ આપણે આપીએ. ओम शांति शांति शांति. બેસીએ. એટલે હવે વધારે સમય નથી લેતો. શ્રી નંદનજીને વિનંતી કरूं કે આપણને मार्गदर्शन आपे. फिर बाद में सर थोड़ा क्वेश्चन होगा, बच्चों को कुछ पूछना हो तो भी हम रखेंगे वो 10 मिनट के लिए. तो मैं अब निमंत्रित करता हूँ श्री श्रीनंदन जी मुखर्जी साहब को कि हमें मार्गदर्शित करें. यही अच्छा, मैं इधर आ जाऊँ? चलो, हाँ, बस ठीक. नमस्कार आप सबको. यहाँ आया और हमें यहाँ बुलाने के लिए अशोक सिंह जी का खूब खूब धन्यवाद. और मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे भी एक मिशन है, मिशन सिंहासन. तो एक मिशन से दूसरा मिशन आते हुए हमें भी खूब आनंद है. और बात हो रही थी हमारे बीच में पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी महाराज आए हुए हैं, जो कि हाल में रामकृष्ण मठ अहमदाबाद में है. यस. तो एक मिशन से हम लोग आए हैं, पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ अहमदाबाद से, मैं श्रीनंदन मुखर्जी हाल में रामकृष्ण सेवा मंडल मांडवी तालुका का बिदरा गांव से. मैप में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा. और हमारे साथ हमारे बड़े भाई जैसे, मित्र भी जैसे, उम्र में वैसे काफ़ी बड़े, और हमारे सभी जो सेवा के काम में हमारे साथ चलने वाले, ऐसे आपने सुना. वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन अभी फुल टाइम सेवा भावी रमेश भाई वेद भी हमारे साथ है. और हमारे एक दूसरे साहब भी यहाँ से है, मैं उनका नाम तो शायद भूल रहा हूँ. शिव शंकर भाई. शिव शंकर भाई अहमदाबाद में हमारे जो मठ के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें वॉलंटियर के रूप में है. तो हम सब एक दूसरे मिशन से आपके यहाँ मिशन सिंहासन में आए हैं. और आने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा मौका आजकल मिलता नहीं है, या फिर मैं खुद ही ये सब मौका ज़्यादा लेता नहीं, क्योंकि समय नहीं होता. कच्छ के कोने से बाहर निकल के, और कच्छ में तो ज़्यादा IAS IRS की बात करें तो फिर उतना नहीं वहाँ जगह है. लेकिन आपके यहाँ आकर आज सच में आनंद हो रहा है. मेरे कुछ साल पुराना इतिहास में मैं जैसे लग रहा है वापस जा रहा हूँ. एक समय मैं भी उस सिंहासन के लिए प्रयत्नशील था, लेकिन खेल खेल में, क्योंकि मैं मन में जानता था कि वो सिंहासन मेरे लिए नहीं. क्योंकि कुछ बोलने से पहले थोड़ा 5 मिनट में मेरा बैकग्राउंड, नहीं तो आपके लिए संदर्भ सेट नहीं होगा.
छोटा था तो अलग अलग पढ़ाई करता था, उसके बीच में स्वामी विवेकानंद जी भी मेरे जीवन में आए और कुछ क्या कहते हैं कि एकदम धमाके के साथ आए। उनका वो जो फोटो आप लोग भी देखे होंगे, स्वामी जी के जो आंखें, पता नहीं मेरे को इस दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षण उनके आंखों से हो गई। और धीरे 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 मैं समझने से पहले शायद उन्होंने मेरे को पीरा, वो आप लोग फोटो में देखते हैं कि फुल सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, हाँ वो कहते हैं, हम लोग बोलते हैं पूर्ण ग्रास चंद्र ग्रहण, इस तरीके से शायद उन्होंने पूरा पूरा मेरे को एकदम खींच लिए मेरे अनजाने में शायद। और उनके किताब पढ़ते पढ़ते एक बार ये एक सेंटेंस का मैं सामना किया। सेंटेंस क्या था, आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे। दिस लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटा है। वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इस लाइफ में बहुत सारे वैनिटी भी है, ये करना वो करना, शो ऑफ, और फिर वो ट्रांजिएंट है, आता है जाता है। उसके बाद खतरनाक स्टेटमेंट, दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। एकदम अंदर से मैं घबरा गया, क्योंकि मैं भी तो दूसरों के जैसा, बहुत सारे वो शहर में जो लोग थे खूब पैसा कमा रहे हैं और खूब अय्याशी कर रहे हैं, मैं भी एक ऐसा ही परिवार में जी रहा था और झटका लगा, मैं मुर्दा हूं। स्वामी विवेकानंद बोल रहे, दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। एकदम अंदर से झटका लगा और लगा कि अरे बाप रे, जब तक इस जीवन में जीऊंगा मुर्दा जैसे तो मैं नहीं जीऊंगा, जीते हुए जीऊंगा। तो और मन में ठान लिया कि ये जीवन अगर प्रभु के कृपा से स्वामी जी के काम में दे पाया तो यही मेरा मिशन होगा। तो उस मिशन से मैं आज मिशन सिंहासन में आया हूँ आप सबके सामने। मुझे खूब आनंद है, मुझे मौका मिला कि थोड़ा आपके जीवन से लगते ही बात हम करेंगे, और मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बोलूँगा तो शायद आपको सुविधा होगा, या फिर हिंग्लिश में बोलूँ वो भी एक भाषा है हमारे अभी तो इंग्लिश, क्योंकि प्योर हिंदी में तो देखो प्योर शब्द ही इंग्लिश है ना हमारे यहाँ तो गुजलिश में बोलते हैं। गुजलिश, अच्छा नहीं, गुजलिश में मैं माहिर नहीं हूँ तो मैं हिंग्लिश में बोलूँगा, जिसमें अभी मैं माहिर हो चुका हूँ तो उसमें हम बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे मुझे साहब ने बताया जब मैं आया कि कुछ यहाँ पे सीनियर्स हैं और कुछ जो है शायद एक आध महीने पहले यहाँ ज्वाइन किए हैं। हु आर द सीनियर वंस, कौन कौन यहाँ सीनियर्स हैं, जरा मुझे बताएंगे हाथ उठा के। हाँ ओके ठीक है, मतलब बाकी लोग जूनियर है ना। परसों ही मैं एक स्कूल में गया था, उनके वो क्या कहते हैं फेयरवेल समारोह था क्लास 12 का, तो मैंने उनको पूछा कितने जन पास करोगे, कुछ लोग हाथ उठाए, फिर मैंने पूछा कितने जन फेल करोगे, तो भी बीच में कुछ रह गए, तो मैं बोला जो लोग हाथ नहीं उठाए वो कौन से कैटेगरी, मुझे तो मालूम नहीं, दो ही कैटेगरी पास या फेल तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सीनियर है एक जूनियर है, वेरी गुड। आप सभी के मन में एस्पिरेशन तो है और मुझे देख के खूब अच्छा लग रहा है कि इतने सारे आप जो यहाँ बैठे हो। मुझे थोड़ा कम धारणा, नॉर्मली हम सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी ज़्यादातर हमारे देश में क्रेज कहे तो बिहार में बहुत है, बिहार में है, यूपी में है, साउथ के कुछ स्टेट्स में है। हाँ, तो मुझे देख के बड़ा आनंद हो रहा है कि इतने बड़े तादाद में आप लोग सब यहाँ पे तैयार हो रहे हो। आपका लक्ष्य सिंहासन है। कितने लोगों का लक्ष्य सिंहासन है, जरा हाथ उठाएंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे हम लोग एकदम, चलिए अभी जो आधा घंटा है ना, मजा तभी आएगा, एकदम हम ऑनेस्ट, दिल खोल के रख देना पड़ेगा, है ना। कितने लोग यहाँ सिंहासन में बैठने के लिए आए हैं, किसका किसका वो एस्पिरेशन है। देखिए अगर वो एस्पिरेशन नहीं है तो स्वामी जी का सपना ऑलरेडी पूरा हो गया, हमारा मिशन का और कोई काम नहीं है। तो आज से हम जो है रामकृष्ण मिशन का जो मोटो, जो लक्ष्य स्वामी विवेकानंद ने तय किया, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा।
ये भी दुनिया के लिए एक नया दिशा लेके आए। क्या नहीं, उससे पहले तो साधु संत लोगों का एक ही लक्ष्य था, क्या? आत्मानो मोक्षर्थम, अपने आप का मोक्ष प्राप्ति। उसके साथ स्वामी विवेकानंद ने जोड़ दिया, क्या? जगत हिताय च। आपको एक अच्छा रास्ता का संधान मिला, काफी नहीं है, 10 लोगों को भी उस रास्ता में आप लेके आओ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? न गुफा, हिमालय, जंगल छोड़ के इनके जैसे स्वामी जी, ये लोग एकदम, स्वामी विवेकानंद बोले शहरों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में खड़ा होकर लड़ाई करना है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। रामकृष्ण मिशन और मठ 127 साल पूरा कर चुका है। ये 1 मई को 128 साल में हम जाएंगे। पूरे विश्व में ऐसा संस्था बहुत कम है। आप लोग पढ़ाई तो करते हो, जनरल नॉलेज अवेयरनेस की भी पढ़ाई करते हो। आप देखना एवरेज एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली एनजीओ, क्योंकि एनजीओज आर सपोज टू बी थोड़ा, वो क्या कहते हैं, लैकेडेजियक, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इतना प्रोफेशनली नहीं चलते हैं, थोड़ा एमेचरिश उनका मूवमेंट रहता है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा मिसाल कम मिलेगा। जो मिसाल स्वामी विवेकानंद का बनाया हुआ ये रामकृष्ण मठ मिशन, 128 years एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। सबसे बड़ी बात, अभी भी हमारे हेड ऑफिस में वेटिंग लिस्ट में चलता है और वो वेटिंग लिस्ट बढ़ता जाता है कि कितने और ब्रांचेस बनने का रिक्वेस्ट आता है। हाँ, तो अगर आप लोग सिंहासन के लिए नहीं होते तो 128 साल में काम हो गया। स्वामी विवेकानंद ने बोले थे खुद ही कि 1500 साल का खुराक दे के जा रहा हूं, जाने से पहले बोले थे। तो 1500 साल में तो वो 10% ही हुआ है। जो भी है, कितने लोग यहाँ है जो देश सेवा करने के लिए यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं? चलो एक तो मिला, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसे ऐसे। हमारे एक स्वामी जी कहते थे, अरे भाई हाथ उठाने में इतना आलसी हो तो देश कैसे चलाओगे? अच्छा, कितने लोग, फिर से पूछता हूँ, कितने लोग देश सेवा के लिए यहाँ पे आए हो? अच्छा ठीक, वाह, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग जो है वो ब्लू कलर का बत्ती गाड़ी में बैठने के लिए आए हो? कोई नहीं भाई, मेरा तो खूब सपना था। मैं जब रास्ते में देखता था ना, वो दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स की पहले की बात है। जब रास्ते में देखता था ना, वो हमारे बाजू में से हम फंसे हुए हैं कलकत्ते की गर्मी में, पसीना पसीना हो रहे, पीले टैक्सी में, या तो अपने एम्बेसडर, उन दिनों एसी कार्स तो थे नहीं, एम्बेसडर में फैंस लगाए करते थे, और बाजू में से एकदम विज करके निकल गया और हमें बोला जाता था देखो देखो सर्व त्यागी का नेता जा रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था ना, तो और वो लोग एकदम वो लाल बत्ती जला के एकदम विज पास्ट। हमें बोला अरे हम कब ऐसे जा सकते हैं, जब वो लाल बत्ती हमारा हो जाए सर के ऊपर तो मजा आए। ऐसा कोई है यहाँ? नहीं। कितने लोग ऐसे हो कि बिना कुछ सोचे समझे आ गए हो? ये बहुत एक अच्छा सवाल मैं कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि 20 साल लगभग हो गए मैं अलग अलग जगहों में जाता हूँ और टॉक्स या इंस्पायरिंग टॉक्स देता हूँ, तो लोगों से मैं जब पूछता हूँ तो ज्यादातर इसी में हाथ उठते हैं। समटाइम्स वी रियली डोंट नो व्हाट वी वांट टू अचीव। मैं मजाक मजाक में ये सब सवाल इसीलिए किया, इससे हमारा टोन सेट हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं ना स्ट्रेस की। स्ट्रेस का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम सच में क्लैरिटी के साथ नहीं जानते हैं कि हमको कहाँ पहुंचना है और कैसे जाना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जैसे जो महान महान व्यक्तित्व बोलने से भी उनको हम छोटा करते हैं, लेकिन साधारणतः हम उनको ऐसे ही जानते हैं। मेरे लिए तो वो सब कुछ है, मेरे लिए वो परम शिव स्वयं है, और सबके लिए ऐसा है, हम जाने या ना जाने, लेकिन फिर भी उनके जैसे महान एक व्यक्तित्व का हमारे बीच में आने का कारण ही यही है। वो अपना जीवन से हमें दिखा के जाते हैं, प्रेरित करके जाते हैं कि हमें कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या करना है।
स्वामी विवेकानंद के भाषा में बोले तो बोल रहे हैं कि एक लक्ष्य लीजिए, टेक अप वन आइडिया। बोले देयर आर ग्रेट मेनी आइडियाज इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारे अच्छे काम है। अगर हम सोचते हैं कि देश के लिए काम करें, तो जो बंदा झाड़ू दे रहा है ना भाई, अगर सोचो कि अहमदाबाद के शहर में जो बंदा म्यूनिसिपैलिटी का पगार पे झाड़ू दे रहा है, अगर सही सही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे ना, तो देश सेवा नहीं होगा, बहुत बड़ा देश सेवा होगा। क्या वो हम करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं टेक अप वन आइडिया, एक महान बहुत आइडियाज है, उसमें से एक ले लीजिए। और क्या बोल रहे हैं कि उस आइडिया को भरपूर जीना पड़ेगा। बोल रहे हैं आपका मन, शरीर, बुद्धि, आपके मांसपेशियां, आपके खून, वो सब कुछ उस आइडिया से ओत-प्रोत कर लो। फिलहाल आप सबके लिए वो आइडिया क्या है ना, मैंने एक लक्ष्य तय किया है कि मुझे यूपीएससी या जीपीएससी एग्जाम को हमें पास करना है। अगर मैंने ज्यादातर विद्यार्थी से जब बात किया अभी तक, तो मुझे हमेशा ये लगता है, मैं उनको जब पूछता हूं कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, तो जवाब में यही आता है कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। सभी बोलते हैं कठिन है, एक चांस में तो नहीं होगा। अगर ये हमारी मन की अवस्था है, आई डोंट नो व्हाट योर फीलिंग्स आर, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम टॉकिंग लाउड। तो अगर ये स्थिति हमारी होगी ना, तो हम श्योर रहेंगे कि हम पास नहीं कर पाएंगे। बोल रहे हैं विश्वास विश्वास। मैं आज बहुत जल्द खूब सारे उनके बातें आपको देते जाऊंगा। अगर आपके मेमोरी में वो चिप्स है तो वो एंटर होते जाएंगे, है ना, और वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर्ड रहेंगे जिंदगी भर। यकीन मानिए, अगर आप स्टोर करेंगे तो आपका जिंदगी में काम आएगा। हाँ, पहला आइडिया जो बोला स्वामी जी ने बोला टेक अप वन आइडिया। आपके पास एक आइडिया, आप वो उसमें ऐसा डूब जाओ, बाकी कुछ दुनिया में ख्याल ना आए, ऐसा, तभी जो है आप सक्सेस पा सकते हैं। दूसरा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते थे विश्वास विश्वास विश्वास, फेथ इन योरसेल्फ। इफ वी डू नॉट, वो कितने बड़े स्टेटमेंट बोल के, नॉर्मली कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसा बात करने से डरे, बट व्हाट यू से इज मार्केट। बोलते हैं कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं और 33 करोड़ देवी देवताओं पे विश्वास है, तो मैं उसको नास्तिक गिनता हूं। जस्ट थिंक ओवर इट। faith, faith, tremendous faith in yourself. अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं हम कर सकते हैं? जो कर रहे हैं वो और मैं, उसमें क्या अंतर है? क्या बहुत बड़ा अंतर है? नहीं, चाहत की अंतर है, डिजायर की अंतर है, एग्रेशन की अंतर है। मुझे आज ये भी सोचते हुए बहुत अच्छा लगता है, मैं ये देखता हूं, और स्वामी जी ने एक सूत्र दिया था, बोले क्षत्र वीर्य ब्रह्म तेज, that will make an ideal character। आज सच में क्षत्र वीर्य की बहुत जरूरी है। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने इस देश को जगाने के लिए आप उनका जीवनी पढ़िए और जान दे दिए। आप अगर उनके लेक्चर्स पढ़ेंगे, जब अमेरिका से वापस आके इंडिया में वो लेक्चर्स दे रहे एक के बाद एक, जैसे कि हमारे कॉन्शियंस को अटैक कर रहे हैं। चेन्नई के उनके लेक्चर्स आप पढ़िए, इतना टाइम नहीं, वरना मैं कोट भी कर सकता हूँ, लेकिन when you go through all this you understand कि वो कितने हमारे अंदर के आत्मा को हिलाना चाह रहे हैं। क्यों ना, हम लोग बड़े ही एकदम वो लेड बैक हो गए, आलसी हो गए, नहीं चलेगा। क्या बोले, क्षत्र वीर्य, क्षत्रिय समाज के हॉस्टल में खड़ा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि वीरता रखो, वीरता से तो हिम्मत आएगा। बोलते थे कि तुम सब शेर हो, ये मत सोचो तुम घेटा हो। उनका एक बहुत सुंदर बच्चों के लिए स्टोरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जीवन के आखिरी पड़ाव तक वो स्टोरी हमारे लिए काम आता है। छोटा सा स्टोरी है जिसमें वो एक शेर का बच्चा, वो बचपन में उसकी माँ मर गई एक्सीडेंट में, और वो घेटा के वो बकरी के साथ झुंड में घूमने लगा, तो उसका बिहेवियर भी वैसा हो गया। और अचानक से एक दिन फिर एक जंगल का दूसरा सिंह आके बोला, है तू बकरा जैसा मैं क्यों कर रहा है, भेड़ जैसा।
तू तो सिंह है। तो बोले बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। हम लोगों का हाल कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। फिर उसको तालाब में लेके बता, देख तू मेरा जैसा नहीं क्या है? हाँ हाँ तुम्हारे जैसा हूं। तो दहाड़ शेर की जैसा। तो कहीं ना कहीं वो साहस की जरूरत, उस विश्वास की, विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर कि क्यों नहीं हम कर पाएंगे। जो लोग करते हैं वो कौन है? उनके 4 हाथ है, 4 सर है, 2 पंख है, ऐसा तो है नहीं भाई। जो कर रहे हैं और जो हम करना चाह रहे हैं, जिन्होंने किया वो भी वही है, हम भी वही है। क्यों नहीं कर पाएंगे? अपने आप को चुनौती देनी पड़ेगी। इन्होंने बताया ना, मैं सच में एक बार ख्याल आया, ऐसे ही ख्याल आया कि अरे देखता हूँ ये लोग बोलते हैं यूपीएससी बहुत कठिन है कठिन है कठिन है, और खेल खेल में उन दिनों आप लोग को मालूम होगा कि नहीं, CSR मैगजीन आता था, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू। वो ज़्यादा ट्रेनिंग क्लासेस नहीं होते ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्लासेस। एनीवे, तो मैं वो लेके क्या किया, मैं उसका वो प्रैक्टिस करता रहा, खूब प्रैक्टिस करता रहा, करते करते, और थोड़ा लैंग्वेज में स्ट्रांग था, मेरे टीचर्स भी अच्छे थे, और मैं देखा फिर प्रीलिम्स में बैठा तो क्लियर हो गया। मैं बोला ये तो गजब हो गया। यानी बाद में अभी रियलाइज करता हूं कि कॉन्फिडेंस था और मैं हारना नहीं जानता था। उसका श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। उनके बातों से जो शक्ति, जो ऊर्जा मुझे मिला, जीवन में कोई एक को आप प्रेरणा स्रोत बनाइए, बहुत जरूरी है। अरे आप सब यंग है, मैं भी यंग हूं, है ना। हमारे देश में यंग का परिभाषा भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। 50 के ऊपर यंग वो सब नहीं चलेगा। हम लोग जो है मतलब 20 साल से यंग हमें गिनती करना पड़ेगा, नहीं। तो जो भी है, हम अगर अपने ऊपर पे विश्वास नहीं रखेंगे तो किस पे रखेंगे? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं माई फेथ इज इन द यूथ। बोलिए, वो तो अनुभव लेके बोल रहे हैं, माई फेथ इज इन द यूथ, नॉट इन द एल्डर जनरेशन। वो नहीं बोले माई फेथ इज इन द यूथ। वो एक एक सिंह की तरह दहाड़ते हुए समस्याओं का हल निकालेगा। ये है राज। हम जो भी बोले, हम बोले कि स्ट्रेस है या हमारा डाउट्स हैं, यही तो हमारा प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम कर सकते हैं, इसका जवाब कौन देगा? बैसाखी के सहारे जीना छोड़ना पड़ेगा। कोई आके मदद करेगा और हम फिर उस मदद को लेके आगे नहीं। हमारे अंदर सब कुछ है। बोले बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर ताक के देखो ना। अमृत के संतान बोल रहे पापी, तुम पापी मनुष्य, अपने आप को पापी कहना सर्वश्रेष्ठ पाप है। सोचिए, क्यों नहीं होगा मेरे से? तो ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ, आपको जो भी लगे, मैं कोई तैयार करके नहीं आता हूँ। हाँ, तो वो होता नहीं मेरे से, जो भी मन में आता है बोलता जाता हूँ। स्वामी विवेकानंद, हमारा फायदा क्या है? स्वामी विवेकानंद एक महासागर है, उसमें से 2-4 बाल्टी जहाँ मिला उठा के थोड़ा आपको छांट के चले जाएंगे। आपको लगेगा अरे कितना अच्छा बोला, मैंने कुछ बोला थोड़ी है, वो जो बोला मैं उसका ही बात आपके सामने रख रहा हूँ। फेथ इन योरसेल्फ, जो भी कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं उनका गुरु कौन था? रामकृष्ण देव, है ना। अच्छा, और उनके तथाकथित गुरु माता जगत जननी क्या कौन थे? शारदा देवी। शारदा देवी का एक उपदेश है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं वो आपको बोलना चाहता हूँ। क्या बोले कि देखो, वैसे साधारणतः हम किसको ठग नहीं सकते इस दुनिया में? आप बोलिए तो। Whom can we not, lie or bluff to ourselves? बाकी दुनिया को हम ठग सकते हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट तक केस जा सकती है, लेकिन यहाँ एक कोर्ट है, इधर एक जज है जो जानता है या जानती है कि अरे भाई तुम गलत किया है, और वो हमें चैन से सोना नहीं देता। माँ शारदा का ये बात अगर आप याद रखें ना, बड़ा अच्छी बात है। क्या बोले? अपने मन को 2 हिस्से में बांट दो, और अपने मन का एक हिस्से को आप अपना अंपायर बना दो। मैं अपने भाषा में बोल रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन भाव उनका है। एक हिस्से को आप अब उनका अंपायर बना दो, वो आपका ऊपर वॉच रख रहा है, और दूसरा जो हिस्सा है मन का, उसको आप जो हम करते हैं उसमें करने दो।
वॉच रखो। क्या होगा मालूम है? जैसे ही हम अपने आप को थोड़ा भी ठगने जाएंगे, वो अंपायर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? हमारे ही अंदर खड़ा है। किसी की जरूरत नहीं हमको, ये तो हमारी सौभाग्य, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट आप सबको मिला है, ये सब लोगों के कारण से। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, और इतना बढ़िया फैसिलिटी। मैंने थोड़ा झलक देखा, झलक से ही समझ जाना काफ़ी है, क्योंकि खुद मैं भी इंस्टीट्यूशन ही काम करता हूँ, तो एक झलक से पता चल जाता है कि क्या फैसिलिटी है। इंडिविजुअल डेस्क डेडिकेटेड टू यू ऑल, ये तो सब बहुत बड़ी बात है। मगर आपके अंदर विश्वास आ जाए, आपके अंदर वो जज वाला मन का हिस्सा रहे जो देखे आपके ऊपर, आर वी नॉट वेस्टिंग टाइम, आर वी बीइंग लॉयल टू आवरसेल्व्स, टू आवर गोल, टू आवर कमिटमेंट, क्या हम कमिटेड भी है, ये भी देखना जरूरी। आर वी नॉट वेस्टिंग टाइम, समय तो चला जाता है, टाइम इज ऑफ एसेंस, उसको हम कैसे 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 यूज कर सके। मैं कभी कभी स्टूडेंट को पूछता हूँ, क्लास 12 आ रहा है, कितना घंटा पढ़ना है? अरे बाप रे सर, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं कहा तेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 कलाक स्कूल में पढ़ेगा, फिर 5 कलाक ट्यूशन पढ़ेगा, उसके बाद फिर अपने से पढ़ेगा। इसका माने क्या है? इसका माने एक ही है कि एक बार में आपका दिमाग में घुस नहीं रहा है, या इसका माने ये है कि आप घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे। माइंड पे ध्यान देते हैं, जिसका वो उपज है स्ट्रेस। तो आप लोग को शायद मालूम है कि नहीं, इन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ध्यान से समझिएगा, इन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड our mind is capable of thinking 6 different thoughts. The smallest fraction of a second by psychologists have been calculated to be 1/6 of a second. That means in 1 second our mind is capable of thinking 36 different ideas or thoughts. 1 मिनट में कितने हुए? हाँ, और हम बोलते हैं कि मन लगाकर हम पढ़ रहे हैं। वो जो मन लगाकर पढ़ना, वो मन में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में, सेकेंड माने ये, और फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में 6 अलग अलग विचार। मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी के थ्योरीज की किताब पढ़िए, उसी में सब बातें हैं। वो बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हमारा मन इतना चंचल है। अब आपको कोई आके बोलेगा ध्यान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, ध्यान शुरू हो गया आपका। कैसा है हमारा ध्यान? हमें तो मालूम है, पहले ही है ना, वो गुजराती में हम बोलते हैं टट्टार बैसी जाओ, है ना, और उसके बाद आंख बंद करके एकदम ऋषि बन जाते हैं, इंस्टेंट ऋषिज, जन्मों जन्मों का हमारा सब तपस्या। और जो है ओम, अरे बाप रे, तो जो है मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, तो ओम शाम को पिज़्ज़ा, ओम वो क्रिकेट का वो पिच, और हाँ, तो वो चलता है ओमकार, रिजल्ट आएगा। स्वामी विवेकानंद में वापस आते हैं, मैं ये संदर्भ किया, उनका एक मेन बात स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ उन्होंने कहा, एक तो विश्वास, आत्मविश्वास, दूसरा क्या, वो खुद बोले अगर मुझे फिर से मौका मिलता दोबारा से पढ़ाई करने का, तो मैं सारा विषय ज्ञान को, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, उन सबको एक बाजू रख के सिर्फ एकाग्रता का अध्ययन करता, किस तरीके से एकाग्र बना जाए। वो मन, जो मन वो ओम पिज़्ज़ा, ओम क्रिकेट, ओम टेस्ट मैच का स्कोर वगैरह वगैरह, और मैं नहीं बोलता, आप समझते हो, तो वो जो है उसको एकाग्र करना। शांत मन कभी नहीं होगा। इस गलत फहमी में हम हमारा समय बर्बाद ना करें। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या कहूँगा, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण जीवन का ये सबसे बड़ा, मैं कहूँगा हमारे लिए एक उपलब्धि ये कि वो बोले कि आप मन को शांत करने की बेकार का कोशिश मत करें, आप उस चंचल मन के सारे चंचलता को एक तरीके से डाइवर्ट करिए।
Channelize those thoughts into one single stream of thought. You get the point? Channelize it into all one stream of thought. That is the idea of एकाग्रता. जब हम जो कुछ भी करें, अपने आप को ठगने की जरूरत नहीं. सीरियसली, जो लोग आपको पढ़िएगा, उनका जीवन में वो लोग इंटरव्यू भी देते हैं ना, पास करने के बाद वो सब सेलिब्रिटीज बन जाते हैं. खासकर जो रैंकर्स होते हैं यूपीएससी के, उनके इंटरव्यूज होते हैं आजकल चैनल्स में भी आते हैं कि आपने कैसे तैयारी की. उसमें से कोई नहीं आपको बोलेगा कि मैं 22 घंटा पढ़ाई किया रोज. नहीं हो सकता है. नॉर्मल लाइफ हमें जीना है, जितना घंटा हमें पढ़ाई के लिए देना उतना ही देना है, लेकिन उसको एकाग्रता के साथ दे सकते हैं क्या? दैट्स इट. स्टूडेंट्स कभी कहते हैं हिस्ट्री इज बोरिंग, है नॉर्मली. आप लोगों में से कौन कौन बोलते हो हिस्ट्री इज बोरिंग? ज्यादातर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से यहाँ हो? इंजीनियर्स कितने हैं? ओके, इंजीनियर्स हैं, ठीक है. और साइंस बैकग्राउंड जनरल से कितने हैं? ओके. कॉमर्स से कितने हैं? ऑफ कोर्स वी आर इन गुजरात. कॉमर्स तो. आर्ट्स में कितने हैं? हाँ, वी आर नॉट इन वेस्ट बंगाल. दैट कंफर्म्स. ओके. आप जहां से भी हो, you will have your own subject preferences. आपको, आप अगर साइंस से हो तो किसी को फिजिक्स और मैथ्स अच्छा लगते होंगे, और उसी आदमी को या उसी को जो है बायोलॉजी मजा नहीं आता होगा, वगैरह वगैरह. ये तो होता ही रहता है. बट इफ यू चैलेंज योरसेल्फ, देखो सब सब्जेक्ट को हमें लेना तो पड़ेगा, एंड नॉट जस्ट दो सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं. वो सबको लेने का एक ही बात है, एकाग्रता के साथ लेना पड़ेगा. कठिन है, मान के चलो कि मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट. नहीं, वो मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा है. अरे कितना डिफिकल्ट, रॉकेट साइंस जैसा तो नहीं हो सकता. और जो रॉकेट साइंस पढ़ते हैं उसको भी इतना डिफिकल्ट रॉकेट साइंस लगता नहीं. इट इज जस्ट अबाउट आवर ओन कमिटमेंट टू दैट सब्जेक्ट इन दैट टाइम. जो समय मैं उसको पढ़ना चाह रहा हूं, अरे थोड़ा कमिटेड होके देख लू ना. कितना कठिन है, 10 बार पूछना पड़े, इससे ज्यादा. यू सी द चेंज इन एटीट्यूड, दिस शिफ्ट इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज व्हाट विल एंश्योर सक्सेस. सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो नहीं है. जिसको सक्सेस बोलते हैं, हाँ मैं सक्सेसफुल आदमी हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत सक्सेस पाया है. कोई बड़ी बात नहीं हुई. मैं तो खेल खेल में पाया. सच कहता हूं, आपको लगेगा मैं ऐसे ही नाटकीय बात कर रहा हूँ, सच में नहीं. मेरा एम्बिशन वो सब नहीं था. मैं खेल खेल में आगे बढ़ता रहा, लेकिन अपने आप को कभी ठगा नहीं. वो जो मेरा जज वाला मन का हिस्सा, वो जज कर रहा था, और मैं चैलेंज करता रहा. लोग बोले अरे ये कठिन है, चलो देखते हैं क्या कठिन है, और मैं निकल गया. और फिर बाद में मैं इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड में जाके अंग्रेजों का इंग्लिश में प्रोफेसर बन गया. कठिन था, मानता हूं, लेकिन किया. उससे भी कठिन था, उस इंग्लैंड का मोह माया को त्याग कर आ जाना. लोग कहते हैं त्याग, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे जो करना था मैं तो उसके लिए आया. वो पैसा छोड़ना वोड़ना आसान है क्या? At the age of 22, I had my own car, Mercedes C220, navy blue color. हाँ, सपना है ना. अरे उसमें भी चलना ही था, और अभी भी मैं गाड़ी में ही चलता हूँ. एसी से मतलब है, एसी नहीं होगा तो धूल लगता है थोड़ा, है ना. तो कौन सी बड़ी बात है. चैलेंज करना पड़ेगा अपने आप को. क्यों नहीं होगा? You have to ask yourself, every day is a new start for you. With full of confidence, you'll have to create a new history that day. ऐसा चैलेंज करके हम दिन क्यों ना शुरू करें कि नहीं, करके रहेंगे. आज सोने से पहले ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके रखेंगे. क्यों? उसको, वो जीने का 2 तरीका है, मुझे खूब अच्छा लगता है. एक आप जानते हो, कल करे सो आज कर, फिर आज करे सो पल में परलय. बोलो, नहीं मालूम? हिंदी में है, पल में परलय होएगी, बहोरी करेगा कब. हाँ. और इसका एक उल्टा है. हमारे बचपन में कॉमेडी मूवी था हिंदी में, गोलमाल. आप लोग देखा है कि नहीं? नया वाला नहीं, पुराना वाला.
उसमें उत्पल दत्त थे, और उसमें एक डायलॉग था, वाह मुझे बहुत मजा आया बचपन में, मैं बोलता हूँ आपको भी मजा आएगा। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या, जब जीना है बरसों। स्वामी विवेकानंद ठीक इसका उल्टा, he had no time, 39 years all that he had. In those 39 years प्रिपरेटरी स्टेज, जैसे आप प्रिपरेटरी स्टेज में हो ना, उनका जो एकेडमी का नाम था, उस एकेडमी का नाम क्या, रामकृष्ण परमहंस। कितने स्टूडेंट एकेडमी में है, 11-12 सीरियस स्टूडेंट्स और 4-5 एमेचर स्टूडेंट्स। क्लास का टाइम ना सो रात का 2 बजे रात का 1 बजे 1:30 बजे, आई उठ 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 उठ, ध्यान कर, शुरू हो गया। हाँ, और क्या, ना कुछ नहीं, जीवन जीते 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 एक स्वामी विवेकानंद बना दिए। विद इन 4 years 1886 में तो उनका शरीर चला गया, शरीर छोड़ के वो जहाँ से आए थे वहीं लीन हो गए, वो ब्रह्म थे और ब्रह्म में ही गए। मगर 4 साल में नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद बना के दुनिया के सामने एक एटम बम रख के चला गया, और फिर एक कागज में लिख के गया, नरेन शिक्षा देगा जब वो घर में और बाहर में हुंकार करेगा। और हुआ वही। 1892 से शुरू करो, इसी गुजरात में 8 महीने जैसे बिताए स्वामी विवेकानंद, और इवेंचुअली ही वेंट टू अमेरिका। और कैसा हुंकार भरा, नतीजा आज अमेरिका में करीबन 200 यूनिवर्सिटीज में, आपको सुन के ताज्जुब होगा, योग की शिक्षण होती है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेडिटेशन, आप लोग सुने होंगे, हैव यू हर्ड ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। उसमें 50 साल में 53 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए हैं। और उनके इंटरव्यूज मैंने पढ़ा था एक बार फ्लाइट में आते जाते, और उसमें मैं ताज्जुब हुआ था। उनको पूछा गया कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। 50 साल में एक यूनिवर्सिटी से 53 नोबेल लॉरिएट्स। इंडिया ने कितने नोबेल लॉरिएट बनाए, यू कैन इमेजिन, है ना, उंगली में गिना जाता है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक जो है ऑल फेथ चैप्लायंसी बोलते हैं, बाहर के यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, सर्व धर्म सद्भाव के लिए एक ऐसा प्रेयर हॉल होता है, वहां अपने अपने तरीके से प्रेयर हो सकता है, वहां ओमकार का मेडिटेशन होता है। And those Nobel laureates say that this was our secret to success, because ये वस्तु हमें एकाग्र होना सिखाए। That is how we learn to achieve success. That is how we understood कि हमारे अंदर ही वो महान शक्ति है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो जो लाठी हम अलग अलग सहारा ढूंढ रहे हैं कि कुछ हो जाए चमत्कार और हम निकल जाए। बताओ, हनुमान जी नारियल वो फोड़ने के लिए और वो पानी पीने के लिए बैठे हैं। हाँ, हम फोड़ते हैं ना परीक्षा से पहले, हाउ टू क्रैक एग्जाम्स, उसमें एक पॉइंट आता है, हनुमान मंदिर में अवश्य जाइए और सुबह एक नारियल फोड़ के आइए, हे भगवान आप हमें पास करा दीजिए। भगवान का काम दूसरा नहीं है क्या, हमारे को पास कराने के लिए बैठे हैं। इट इज अमेजिंग। नहीं, अपने आप पे श्रद्धा, स्वामी विवेकानंद। यू सी, खाली सिलेबस पढ़ने से नहीं होता है। When you really ask me कि स्ट्रेस कैसे कम करूं, you have to be inspired by, देखो जोत से जोत जलता है, हम बोलते हैं ना। मैं यहाँ आके 40 मिनट बोल के गया और आप खूब इंस्पायर्ड हो जाओगे, नहीं होगा। आपको अच्छा जीवन भी देखना पड़ेगा। अच्छा जीवन देखने के लिए मैं मान के चलता हूँ कि शायद इमीडिएट हमारे नेबरहुड में नहीं हो, लेकिन किताबों में तो है। वो सब महान जीवनों को हमें कभी कभी पढ़ना भी पड़ेगा। और आजकल तो अच्छा है, बाय डिंट ऑफ यूट्यूब यू गेट ऑल दोस थिंग्स, वीडियोस एंड ऑडियोस एंड व्हाट नॉट। इफ यू डोंट वांट टू रीड बुक्स, it's okay, the times have changed now,
and you can get into those audio books and videos, no problem, so long as you access all those. अच्छे जीवन को हम देखें, अच्छे जीवन से अपने आप को जोड़े, that will inspire us. कि उन्होंने क्या किया था? वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर 8 महीने मेहनत करके मजाक में खेल खेल में, उस जमाने में ICS बोलते थे, आप लोगों को मालूम होगा, दैट वाज इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें ये सब तो थे ही जो आपको होना है, उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग, फिजिकल एक्सरसाइज माने फिजिकल फिटनेस की टेस्ट, ये सब थे जैसे आर्मी में होते हैं। और वो आदमी ने मजाक मजाक में क्रैक कर गया, सिर्फ नहीं रैंक हुआ। और एग्जाम कहां होते थे मालूम है? यूके में जाके। क्या था वो राज? उनके अपने जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो ही इज ऑल्सो नोन एज द मानस संतान ऑफ स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष। And he says, his elder brother says that at the age of around 5 to 6, नेताजी माने सुभाष चंद्र, उनके घर के ऊपर वो छत के वो जो जहाँ सीढ़ी खत्म होती है ना, हाँ वहाँ पे छोटा सा एक जगह होता है, सीढ़ी जहाँ खत्म होती है, हमारे सबके घरों में होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, वहाँ जाते थे रात को छुप छुप के, कोई देखे नहीं, उनके भैया देखते थे लेकिन फिर भी चुप रहते थे, डांटते नहीं थे, वो वहां जाके ध्यान करते थे, मेडिटेट करते थे। सुभाष चंद्र बोस कुड मेडिटेट फॉर आवर्स। यू सी, वो सक्सेस नहीं पाएगा। एट द एज ऑफ 13, उनका जीवनी पढ़िए, एट द एज ऑफ 13 ही रीड्स स्वामी विवेकानंद और बोल रहे कि यही तो मुझे चाहिए था, मुझे मेरा आदर्श मिल गया। ऐसे हम सबको हमारा आदर्श मिलना है। And we are fortunate to be born in India, the country that Swami Vivekananda was born to. बड़ी बात है। मुझे सौभाग्य हुआ ना, मैं विदेश में रहा, इसलिए मैं देख के आया हूँ। I can tell you, विदेश में मैंने जो उनके प्रति प्रेम और आग्रह देखा ना, मेरा रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ गया। अमेजिंग, मैं बोल नहीं सकता आपको। अमेरिका जाने से पता चलता है कि कैसे है। जस्ट बाय कंपैरिजन मैं बोल सकता हूँ, गुजरात में रामकृष्ण मठ मिशन के भाव प्रचार परिषद एक विंग है, हमारे जैसे भक्त लोग चलाते हैं, उसके मात्र 10 सेंटर्स हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 24 सेंटर्स हैं। यू सी, जस्ट अ क्लियर कंपैरिजन। वो जो हुंकार करके आए थे अमेरिका में, 3 years he spent, that was enough। आर्टिकल में लिखते हैं, अमेरिका गॉट अ न्यू डॉन, अमेरिका को एक नया सुबह मिला स्वामी विवेकानंद के बातों से। क्या दे के आए? वो इंस्पायर करके आए, अपना वो जीवन दिखा के आए, अपना वो चरित्र दिखा के आए। ऐसे चरित्र हमें देखना पड़ेगा टू गेट इंस्पायर्ड। अच्छे अच्छे चरित्र को पढ़िए, थोड़ा जरूरी है। I don't know whether it is part of your course here, but even if it's not, आप अपने से तो कर ही सकते हैं। शॉर्टकट तो कुछ नहीं है। अपने आप पे विश्वास, पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता, शक्ति बढ़ाना और अच्छे जीवन से इंस्पिरेशन पाना, ये बहुत मैं नहीं कहने आया कि खाली स्वामी विवेकानंद ही आपको इंस्पायर कर पाएगा। हाँ, उन्होंने मुझे किया और मेरे जैसे हजारों को किया। आप जानते हो, आज देश के बड़े बड़े नाम, उनको भी उन्होंने इंस्पायर किया। इतिहास के भी कुछ बड़े नाम को उन्होंने ही किया था, और आने वाले 1400 साल कम से कम उन्हीं के बात को मैं दोहरा रहा हूँ, उनसे बहुत लोग इंस्पायर्ड होते रहेंगे। तो क्यों नहीं हम भी? आप देखिए, आपका आत्मविश्वास से आप भर जाओगे। When you actually follow a great personality, we also, स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं एक सूत्र, if you think of yourself great, great you become. If you think yourself to be weak, weak you become. It's amazing. ये वेदांत का सिद्धांत है, ये कोई मैजिक नहीं है। This whole world is reflected reality. If it is so, then the whole world is me. It is within me. So if I can really think of myself as great, I will become great. अगर दुनिया में चारों ओर अगर मैं पॉजिटिव हूं ना, दुनिया भी पॉजिटिव दिखेगा। ये वेदांत का सिद्धांत है। ये शायद आप समझे नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप समझोगे। बट दैट्स द रियलिटी।
कठिन किसके अंदर है? मन के अंदर है ना। और आसान भी कहाँ है? तो उस मन को तैयार करने की तो बात है। मन के लिए ही तो ये लड़ाई है। शरीर की बात तो कम है। शरीर तो ठीक है, थोड़ा भाग दौड़ लिया, ये सब कर लिया, बहुत अच्छी बात है, हो गया। शरीर को हमारा थोड़ा थोड़ा फिटनेस चाहिए, है ना। थोड़ा ज्यादा मोटा होने से भी हमको आईएएस पास होने देगा ना, यूपीएससी क्रैक करने का। ये तो इसमें तो वो फिजिकल एग्जाम है नहीं, वो सब तो आर्मी में होना पड़ता है। लेकिन जो भी है, मन जो है वो मन को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। दैट इज आवर चैलेंज, दैट इज हाउ टू लिव द लाइफ। अगर आपको सक्सेस चाहिए, नो टाइम लाइक प्रेजेंट, नो टाइम लाइक प्रेजेंट, आज ही, अभी हमको करना है। दैट शुड बी द एटीट्यूड एंड यू विल सी द होल थिंग विल चेंज। हमको जो कठिन लग रहा था वो शायद आसान लगने लगेगा। हमको लगेगा अरे क्या है, देखने का दो तरीका है ना, कि वो अभी भी बहुत दूर है। और फिर ये भी है ना, जैसे हमारे गांव वाले बोलते हैं ना, कितना दूर है, बस बस इतना ही है, बहुत अच्छा है ये एटीट्यूड, वेरी नाइस, दैट इज इंस्पायरिंग। हम पहुंच जाएंगे। फिर बोलते 5 मिनट, फिर 5 मिनट गए, अरे कहाँ है, वो दूसरे को पूछा, बोले बस 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 2 मिनट, फिर गए तो पहुंचते नहीं है। इसी तरीके से वी हैव टू इंस्पायर आवरसेल्व्स। यू सी, बाहर से कोई आके हमें इंस्पायर नहीं कर सकता। हम लाख भाषणबाजी करें, कुछ नहीं होगा। हम तो आपको कुछ वो रेफरेंस दे के जा सकते हैं, बट यू विल इवेंचुअली गेट इंस्पायर्ड इफ यू decide to dig deep within yourself and sit down with yourself and think कि अरे मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, रास्ता कितना लंबा है और कैसे मैं इस रास्ता को तय करूँ। That's all. This is the game of life. अगर आप इसको आसान समझ के, अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तो हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम सब जो है शायद वो सुख शांति चाहते हैं। लाइफ विल नेवर बी बेड ऑफ रोजेस, नेवर बी बेड ऑफ रोजेस, ये आपको समझ लेना पड़ेगा। हम खाली वो आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, वो आसान पैसेज कहाँ से हम निकल जाए तो हो जाएगा। फास्ट फूड कल्चर, इट इज दिस फास्ट फूड कल्चर। हमको वेट नहीं करना है, लेकिन अच्छा खाना है, तो वेट नहीं करना है, फटाफट फटाफट नहीं होगा। पिज्जा ओवन में डालोगे तो 15 मिनट लगेगा मोज़रेला को मेल्ट होने में, है 2 मिनट में हो जाएगा, कच्चा होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट इज जस्ट लाइक दैट। यू रिमेंबर। अब मैं आखिरी बात पे आता हूं। बोलने का तो बहुत कुछ है, ये तो आपके पर्सनल गोल्स की बातें की और जो भी चैलेंजेस को क्या करना है। इवेंचुअली स्वामी विवेकानंद जो आप सबसे बोलना चाहते हैं, हम सबसे भी बोलना चाहते हैं, हम सब उसमें इंक्लूडेड है। हम सब कोशिश ही कर रहे हैं, कोई बन नहीं गए हैं। मे बी वी आर 2 steps ahead of you, that's all we are, not that we have achieved our goals. What he wants to really say is, देखिए शायद तो आप मेहनत करके यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, जीसीएससी क्रैक कर जाएंगे, और आने वाले कल का भारत का आप ही लोग जो है डिसाइडिंग फैक्टर्स बनेंगे। भारत उतना ही अच्छा या बुरा बनेगा जितना अच्छा या बुरा आप लोगों का मन होगा, हाँ कि ना। तो कृपया कृपया अपने मन को बनाने का भी एक मेहनत करिए। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई सीधा सिलेबस नहीं है, कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है कि अमुक यूनिवर्सिटी में जाने से होगा। ऐसे सब लोगों के सानिध्य से थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। आप वो कहते ही हैं हमारे कि सत्संग, हमारे शास्त्र में भी बोला गया है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और अच्छे लोगों की संगत, ये 3 चीज तो बहुत मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है हमें, कोई ऐतराज है? देखिए स्वामी जी खतरनाक बात करते हैं, बोल रहे हैं कि डॉग लाइक एग्जिस्टेंस। बोले वो तो कुत्ते भी हैं जो जीते हैं। देखो सुनने में कैसा अजीब लगता है। दैट्स व्हाट स्वामी विवेकानंद अंदर से हमें शेक कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोल रहे देखो वो भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, झगड़ा करते हैं, मर जाते हैं। हम भी ये सब करते ही हैं, लेकिन मात्र यही करते हैं,
धर्मेण हीना पशु भी समान, याद रखना पड़ेगा। धर्म के बगैर पशु और हम में अंतर है? कोई अंतर नहीं। That physical level of existence is all the same, but why we are different is we have Vivek Shakti. That's what Vivekananda is. We have this power to discriminate between right and wrong. We can decide what is to be done and what is not to be done. है? रास्ते में एक सांड को देखिए, गुस्सा आया, सींग लगा के लड़ाई शुरू कर दिया। ह्यूमन बीइंग्स वो विचार करेगा, ऐसा करने से उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। और जितना ज्यादा बड़ा सिंहासन आपका होगा, याद रखिए, आपका एक कलम का, मैंने साहिब के ऑफिस में देखा, मैं हमारे बचपन का एक बहुत बढ़िया कोटेशन, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, बहुत अच्छा लगता था। और क्षत्रिय हॉस्टल में घुस के पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड देख के मैं खूब ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि गुजरात में जब पहले आया ना, वो तलवार नृत्य दिखाया मेरे स्टूडेंट्स ने, मैं तो एकदम घबरा गया, बाप रे बाप, वो अगर हाथ से छूट गया था तो मेरा तो लाइफ इज शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो लेकिन आई सॉ दैट ग्रेट स्किल कि हाथ से कभी छूटता नहीं। आप लोगों को भी आता होगा नहीं? तो जो भी है, तो यहाँ आके पैराडॉक्सिकली मैंने पढ़ा कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। लिटन साहिब का बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके ऑफिस में लगाया हुआ है ना। मेरा गलत आदत है देखने का, फटाफट देख लो। तो वो जो है, पेन इज रियली माइटियर देन स्वॉर्ड। आपका एक साइन, आपका एक लाइन, मे बी वन वर्ड, मे रूइन लॉट्स ऑफ पीपल्स लाइव्स। इस जिम्मेदारी का एहसास, ऐसा मनुष्य बन के अगर हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, ये देश और दुनिया सच में आगे जाएगा, एक सुंदर दुनिया बनेगा। और इसका उल्टा करेंगे तो जो हम देख रहे हैं वही होगा। साहब बहुत करप्शन है, बहु करप्शन છે અહીંયા तो लाओ बराबर। फिर वही आदमी 2 दिन बाद शायद कोई मूवी हॉल में गया, बहुत लंबू लाइन છે અહીંયા तो શું કરું હવે, कहीं सेटिंग થઈ શકે? हाँ, हमारा फेवरेट वर्ड्स क्या क्या है मैंने समझा है, देश में घूम घूम के नंबर 1 पे आता है जुगाड़। नंबर 1 वर्ड, वी लव इट, जुगाड़, फटाफट कुछ जुगाड़। अभी साहब ने इतना मेहनत कर, यहाँ तो क्या है 8 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा। बाजू में एक खोल दे, छोटा इससे बिल्डिंग, ऐसी फैसी नहीं, लेकिन उसका नाम हो जुगाड़ इंस्टीट्यूट, और वहां पे ऐसा कुछ मैजिक हो, आप जानते हो क्या मैजिक, उसमें हो जाए। और वहां पे ज्यादा नहीं, लेकिन 10 जन ही खाली आए साल में, और वो सब गारंटीड यूपीएससी क्लियर। अरे बाप रे, क्या ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। जुगाड़, आवर नंबर 1 लव। दिस वे वी विल नॉट मेक दिस कंट्री। वो जो देश स्वामी विवेकानंद चाह रहे थे, वो जो आप सबके ऊपर विश्वास छोड़ के गए हैं, माई फेथ इज इन द यूथ, वो यूथ देखने के लिए सच में भाई कभी कभी आंख तरस जाता है। नहीं दिखता, बहुत दुख से कह रहा हूँ। सबका जीवन का ज्यादातर लक्ष्य सुनता हूँ ना, तो फिर लगता है अरे अभी और 1400 साल इंतजार करना पड़ेगा, काश इस जीवन में देख के जाऊं। जरा सोचना इस पे भी। दिस लाइफ इज रियली शॉर्ट। हम अचीव करें, बहुत कुछ अचीव करें, लेकिन अच्छा एक मनुष्य बनकर अगर हम उस आसन पे विराजमान होंगे ना, वी विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, वी विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। लोगों को उसका इंतजार है। पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर वेटिंग फॉर सच ग्रेट ऑफिसर्स। नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ, हमेशा दुनिया नहीं तो चलती नहीं है। इस दुनिया का मजाक यही है कि राम रावण हमेशा चलता रहेगा, रावण का हमेशा 10 सिर होगा और राम जी को लड़ाई करना पड़ेगा। ये महाभारत चलता रहेगा, ये कभी अंत नहीं होगा, नहीं तो फिर ये खेल खत्म हो जाएगा। मगर कम से कम हम तो कोशिश करें, जो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, आप लोगों के भविष्य खूब उज्जवल हो और साथ में आपका जिम्मेदारी भी होगा। उस जिम्मेदारी का सामना अगर आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मन का मालिक बनकर करेंगे, ये देश को फायदा होगा। ये देश सच में महान बनेगा। बातों से देश महान बनेगी
बोलिए, नहीं, हमारे विचारों से बनेगी। देश माने क्या? देश के इंसान, देश के इंसान का विचार अच्छा से अच्छा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, वी ट्रैवल फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू द हायर, सो वी आर ऑल ट्रैवलिंग फ्रॉम द लोअर ट्रुथ टू द हायर। वी आर नॉट सिनर्स, हम गलत कोई नहीं है, हम सब कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इंस्पायर्ड होना जरूरी है। अच्छे जीवन, स्वामी विवेकानंद बोलिए, सोचिए कितना कठिन होगा। बोल रहे हैं सच के लिए मैं कुछ भी त्यागने को तैयार हूं। ये जीवन का तपस्या, कुछ भी। क्या हम तैयार हैं? ये सवाल, वो जो मन में दो जज है ना, वो एक जज है, एक खिलाड़ी है, वो जज से ही पूछना है हमको, आर वी रेडी, आर वी केपेबल इनफ। जब हमारे कंधे पे वो जिम्मेदारी आएगा, जब वो एक पेन चलने से लोगों का भविष्य बनेगा, कैन वी डू इट? बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं मेनली जो पॉइंट्स जो मन में आया मैं आपके साथ शेयर किया। कैरेक्टर बिल्डिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साहब ने बोला, मुझे खूब अच्छा लगा कि इस इंस्टीट्यूट में एक लक्ष्य यहाँ पे है कि आप जो भी यहाँ पे हो, वास्तव में आपका चरित्र निर्माण हो। चरित्र निर्माण माने वास्तविक खाली मोरालिटी नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहिए। There is something different between personality development and character development. Personality शब्द जो है ना, वो यूरोपीय संस्कृति का शब्द है। ये समझा दूं आपको। Personality word comes from the word personae, which means मुखौटा। और जब मैं ही प्रोफेसर था इंग्लिश का, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस का, मुझे ही वो सब क्लास करना पड़ता था। पर्सनालिटी डेवलपमेंट माने क्या? हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्माइल। कितना दांत निकालने से वो क्या कहते हैं, सिविलाइज्ड स्माइल कहा जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन स्माइल एंड लाफ। एक दिन मैंने समझा कि छोड़ो ये सब झूठा नाटक, एंड कम बैक टू द एज ओल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ये इंडिया का गिफ्ट है वर्ल्ड को, भूलिए मत। व्हाट इज कैरेक्टर? मुखौटा बनाने हम नहीं बैठे हैं, हम सब मुखौटा बना के ही बैठे हैं दुनिया में, याद रखिए। करप्शन जाएगा नहीं, कैरेक्टर्स बनने पड़ेंगे। उसमें कोई मुखौटा नहीं है, जो मन में आए वही। समझे? रामकृष्ण देव का एक विचार याद रखिए जीवन में, इससे अच्छा धर्म का विचार आपको शॉर्ट में मिलेगा नहीं। क्या बोले? मन और मुख को एक करने का नाम धर्म है। मन और मुख को एक करने का नाम धर्म है। ये कसौटी पे खड़ा उतरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। धर्म का नाटक करना आसान है, लेकिन मन और मुख को एक करना, अगर ऐसे यूपीएससी कैंडिडेट्स हमें मिले इस देश में, क्या बात है, मजा आ जाएगा। और ऐसा ही होगा। क्यों होगा? ऋषि वाक्य झूठ नहीं होता। भारत जागेगी, वो अपने अतीत के सभी गरिमाओं को म्लान करते हुए और उच्चतर स्थिति में पहुंचेगी। पूरा विश्व को वो सिखाएगी, पॉलिटिकली नहीं, सोशली इकोनॉमिकली भी नहीं, स्पिरिचुअली। भारत ने ये सिखाया कि वी आर कैरेक्टर्स, वी आर गॉड्स। कैरेक्टर माने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये जो अलग अलग हमारे लेयर्स है, इसके उन्नति करना पड़ेगा। मन को छोड़ने से नहीं होगा। इन द बैटल बिटवीन हेड एंड हार्ट, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। Head will sometimes take you to the wrong direction, heart will never. Think carefully, we are always preferring our head. हम बुद्धि से इस खेल को जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं। बुद्धि से मेरे दोस्त खेल को कभी नहीं जीत पाओगे, ये मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ मेरे तजुर्बे से। बुद्धि के साथ साथ जब आप दिल को भी साथ में लगाओगे, स्वामी विवेकानंद बोल रहा है, दिल आपको कभी भी गुमराह नहीं करेगा। कोई भी फैसला अगर हम लेंगे भविष्य में, मैं तो देखना चाहता हूँ आप में से कोई पहचाना हुआ चेहरा, हमारा भी काम थोड़ा आसान हो जाए। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं डिपार्टमेंट्स के, इसमें से कोई चेहरा मिल जाए, वो याद कर, अरे साहब आप आए थे उस दिन, बता के गए थे। हाँ, और बिना वो नीचे का व्यवहार का हमारा काम होने लगे तो खूब आनंद आएगा।
दिल और दिमाग में दिल को चुनिए, आप लोग आपका लक्ष्य प्राप्त करिए। जीवन का लक्ष्य मात्र यूपीएससी क्लियर करना नहीं है, हालांकि वो आपका इमीडिएट गोल है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस एक बढ़िया आदर्श इस वर्ल्ड का सिटीजन बनिए, और जिससे आपको गर्व होगा, आपके आस पड़ोस, आपके कम्युनिटी को गर्व होगा। मैंने बहुत समय लंबा भी ले लिया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। हाँ, आपको बुरा लगा तो भूल जाना, अच्छा लगा तो थोड़ा स्टोर करना, दोबारा आने बोलोगे तो आ भी सकता हूँ, और नहीं बोलोगे तो मेरा धक्का बचेगा। I wish you all the very best for your future. I really want to thank the institute, the faculty members and sir once again for doing this wonderful work. ये बहुत अच्छा एक काम मुझे आज देखने को मिला, स्वामी जी का बात करने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं सच में धन्यवाद करता हूँ। Once again wishing you all the best for your lives. Thank you. हेलो मित्रों, सर आज एक बंदे ने मुझे सुबह सुबह एक कविता लिख करके भेजी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। मेलांकल था, बिल्कुल शोकग्रस्त था। वो बंदा इधर बैठा है, उसको आज सब जवाब मिल गया है सर। थैंक यू। हाँ, और बच्चियां भी लिखती हैं। एक पोएटेस हैं हमारी बच्ची, अभी कच्छ में है, कच्छ से आई थी लास्ट बैच में। दिल्ली के एक मैगजीन में उसकी 2 कविताएं छपी है। हाँ, तो भाषा ने शो वळगे भूर, रणमा जे जीते ते शूर। श्रीनंद साहेबे रुवाड़ा उभा कर दीधा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए सर आपको सुनते हुए। आप यहाँ पधारे, आपका प्रेशियस वैल्यूएबल टाइम आपने हमको दिया। स्वामी जी भी हमारे बीच में है, स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि हमें आशीर्वचन दे, और जो कुछ भी बाकी रह गया हो स्वामी जी भी थोड़ा बहुत हमें सिखाए। सीखना ही तो है जिंदगी, सीखते चले जाएंगे, कम से कम भूले करेंगे, भूले रिपीट नहीं करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी आप आशीर्वचन आपको है विनंती। या इधर ही रख देता हूँ, वैसे रहेगा, नो प्रॉब्लम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लगाना ही पड़ेगा। इस संस्था के संचालक और यहाँ पर बैठे, मंच पर बैठे श्री श्रीनंदन
मुखर्जी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थी मित्र, मैं पहली बार ऐसे किसी एकेडमी में बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट स्कूल में तो बोला हूँ, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले, मुझे याद है कि हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के जो त्रयोदश अध्यक्ष थे, तो श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज, अगर नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वो हमेशा जो आप लोगों की जो यूपीएससी क्लियर करने के बाद में ट्रेनिंग होती है मसूरी में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ नेशनल एकेडमिक ट्रेनिंग, लाप्सना बोलते हैं उसको, शायद नाम सुना होगा। तो उसमें वहाँ हर बार जो पहली जो बैच निकलती है, उसमें पहला जो ओरिएंटेशन टॉक रहता था वो स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज का रहता था उस समय, वे बैक इन 1970s 80s, उस समय की बात है। तो इतने सारे यंग लड़के यहाँ पर आपके एकेडमी में हैं जो यूपीएससी में अपेयर होने वाले हैं। और अभी अभी आप लोगों ने बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच जो है श्री मुखर्जी के द्वारा सुना कि स्वामी विवेकानंद जी का जो विश्वास था वो युवकों के ऊपर था, और इसीलिए युवकों के प्रति उनकी आस्था थी और युवकों के प्रति से उनकी आशाएं थी कि इस देश का अगर पुनरुत्थान होना है या इस देश का फिर से पुनर्निर्माण अगर होना है तो युवकों के द्वारा ही होगा। और इसीलिए आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है 12 जनवरी, उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से घोषित किया गया है। और इसकी स्टोरी है 1985 में जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब मंत्रिमंडल की बैठक में ये डिसीजन लिया गया था ये कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने के लिए। तो मंत्रिमंडल की बैठक में वो पूछा गया प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन ही क्यों युवक दिवस बोल करके मनाया जाए। तब किसी मंत्री ने उत्तर दिया था कि स्वामी विवेकानंद जी का जो मैसेज है वो युवकों के लिए है। तो फिर प्रश्न आ गया कि क्या स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज फिर बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है? तब उत्तर दिया था, बहुत ही इंटेलिजेंट उत्तर दिया था, कहा कि जब स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज जो भी कोई पढ़ता है, चाहे छोटा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो युवक ही बन जाता है। तो इसीलिए उनका जो जन्मदिन जो है वो युवक दिवस के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि उनकी आस्था जो थी युवकों के प्रति थी। महाभारत में जो एक युधिष्ठिर को प्रश्न पूछे गए थे, यक्ष प्रश्न नाम से बहुत प्रसिद्ध है, उसमें एक प्रश्न ये भी था, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न ये भी था, कफ पंथा, कौन सा मार्ग है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नासो मुनिर्यस्य मतम भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता सब पंथा। महाजनों अर्थात जो कोई महानुभाव व्यक्ति है, महापुरुष लोग हैं, उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग रहता है, सब पंथा वही पंथा है। तो हम लोगों के विशेष करके भारतवर्ष में कितने महानुभाव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनमें से ही स्वामी विवेकानंद जी एक थे, और उन्होंने हम लोगों को एक निर्दिष्ट दिशा इसमें दी है। और इसी की चर्चा अभी श्री मुखर्जी कर रहे थे। आप लोगों का जो ये होता है ट्रेनिंग जहां पर होता है, जिसका लाप्सना में, तो उसका जो प्रवेश द्वार है, गेट है, उसमें एक उद्देश्य वाक्य लिखा हुआ है, मोटो, और वो ये है, शीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। हम लोगों के देश में जैसी सभी जो सेवाएं बोलते हैं, जैसे वैद्यकीय सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, वैसे ये भी है प्रशासकीय सेवाएं। और इसका मोटो जो है वो है शीलम परम भूषणम,
कैरेक्टर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जिसके ऊपर में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारा एम्फेसिस दिया था। जैसे कि उन्होंने कहा कि कैरेक्टर क्या है, चरित्र। हम लोगों के इसमें भारतवर्ष में चरित्र ही तो पूजा जाता है। उसमें चरित्र में जो हम लोगों को जिस प्रकार का हम लोगों का आचरण होता है, हम लोगों की सोच जिस प्रकार की रहती है, या हम लोगों के संवेदनशीलता जो है, हम लोगों का जो व्यवहार है, वही तो इस चरित्र के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए हम लोग, और जिसके माध्यम से ये अच्छी तरह से हम लोगों के सामने प्रकट होता है, उसको हम लोग आदर्श कहते हैं। प्रभु श्री राम का आदर्श है, वो चरित्र है। सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, चरित्र ही तो पूजा जाता है। तो वैसे ही जिसका आचरण, जिसकी संवेदनशीलता जितनी स्ट्रांग होगी, उसका फिर वो चरित्र उस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है, उसका आचरण, उसका व्यवहार उस प्रकार से होता है। बहुत खुशी है कि आप लोग इस प्रकार से इस यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं, और आगे चल करके इसमें से कई लोग उसमें क्लियर करके ये भी बनेंगे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस या और भी जो भी है। लेकिन आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी इसमें, है ना। तो उसके लिए जो विवेक जरूरी रहता है, वो विवेक हम लोगों को हर समय में याद रखना है। क्योंकि जैसे अभी कहा कि एक कलम के इससे, स्ट्रोक से आप लोग किसी की जिंदगी बदल सकते हैं या कुछ डिसीजन ले सकते हैं, है ना। जो हो सकता है कि खतरा भी हो, और अगर अच्छा डिसीजन आपने ले लिया तो फिर समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए भी हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है ना, पावर। और जो पावर अगर ठीक तरह से चैनलाइज कर दी तो अच्छी बात है, उससे सबका कल्याण ही हो जाएगा। अगर उसको मिस डायरेक्शन कर दिया तो फिर वो पूरी तरह से तहस नहस कर देगी, तबाही मच जाएगी उसमें। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो है हम लोगों के हर एक के भीतर, वो एनर्जी है, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। वो ऊर्जा प्रकट होती है हम लोगों के चरित्र के माध्यम से। और हम लोगों ने जैसे कि कहा अभी इन्होंने कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है हर एक व्यक्ति के भीतर, जो ये एकाग्रता की शक्ति है, इस एकाग्रता की शक्ति से मनुष्य और मनुष्य में फर्क किया जाता है। पशु से मनुष्य फर्क क्यों है? क्योंकि एकाग्रता की शक्ति, पशु एकाग्र हो सकता है जब अपनी शिकार करता है, तब उस समय, लेकिन मनुष्य को विवेक दिया है, मनुष्य को जो है विवेक दिया है, और वो एकाग्रता की शक्ति दी गई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोग सभी में आपके, क्योंकि अभी इस धरा पर आप आज आ पहुंचे, तो आपके भीतर में एकाग्रता की शक्ति जरूर है। लेकिन जैसे कि ऐसी चीजें जैसी रहती हैं जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया, जिसमें हम लोग अपना शक्ति का अपव्यय करते हैं। बहुत सारी शिकायतें आती है ना कि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। गलत है। हम लोगों को जिस चीज में रुचि है उसमें तो हमारा एकाग्रता बहुत हो जाती है। व्हाट्सएप चलाने में तो एकाग्र करने का है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। सोशल मीडिया में जितने सारे आप इंटरव्यूज अगर देखते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे इन्होंने कहा कि वो यूपीएससी में क्रैक करके जो आईएएस रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं ना, उनके इंटरव्यूज आते हैं। मैंने भी कई 3-4 ऐसे सुने हैं। तो उसमें हमने देखा है कि जरूर उसने उल्लेख किया है उस विद्यार्थी ने कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहा हूँ, मीडिया जो है उससे दूर रहा हूँ। और 2 साल या आपके जो भी 1 साल 2 साल जो रहते हैं, उसमें वो पूरी तरह से उसने अपना मन को एकाग्र करके इसको ये सफलता पाई है। ये केवल यूपीएससी की नहीं, क्योंकि आगे चल करके और बहुत सारी एग्जाम्स, बहुत सारी चुनौतियां आप देंगे, है ना। तो उसके लिए ये आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ 2 चीजों की बस उल्लेख करूंगा। जैसे कि मैं मैसूर में था, हमारा वहाँ पर रामकृष्ण मिशन वहाँ पर भी है। तो वहाँ महाराजा कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर राजा बोल करके। तो उन्होंने ये घटना बताई थी। वो एक बार उनका बेटा आईआईएससी बेंगलोर में पढ़ रहा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो टाटा के द्वारा स्थापित हुई थी वहाँ पर। तो सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन। अपना कॉलेज खत्म करके वो अपने बेटे के पास गए बेंगलोर में। तो रात को पहुंचे,
नेचुरली खाना पीना हो गया तो करीब रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे उस समय। तो उनके बेटे ने कहा कि चलिए पिताजी हम लोग आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में लाइब्रेरी में ले जाते हैं। तो बोले अभी 12 बज रहे हैं, अभी लाइब्रेरी में क्या जाएंगे? बोले नहीं चलिए तो आपको दिखा देता हूँ। तो अपने पिता को वो ले गए वहां पर लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जाकर के उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आईआईएससी बैंगलोर की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो खड़े रहने के लिए जगह नहीं वहां पर, रात के 12 बजे का समय है और खड़े रहने के लिए जगह नहीं वहां पर, इतना इट्स ओवर क्राउडेड है ना। तो फिर उसने अपने पिताजी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ऐसा करके दिखाया, और एक जगह लेके गए जहां पर वो फैकल्टी लोगों के लिए एक टेबल रहता है, फैकल्टीज जहां पर पढ़ते रहते हैं। तो वहां पर जाकर के उन्होंने देखा, बोले कॉर्नर में एक जन बैठे थे। तो बोले जानते हैं पापा ये कौन है? तो बोले हाँ मैं जानता हूँ, वो थे प्रोफेसर CNR राव, जो बाद में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। प्रोफेसर CNR राव रात के 12 बजे वहां पर ही वॉज पोरिंग थ्रू द बुक्स। इतना अमेजिंग, मतलब लगता है कि एक लाइब्रेरी में बैठ करके डायरेक्टर, दैट टाइम ही वाज द डायरेक्टर ऑफ आईआईएससी बैंगलोर, बाद में जाकर के वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने। तो देखिएगा कि कोई देयर इज नो मैजिक वैन फॉर इस प्रकार के सक्सेस के लिए नहीं है। हार्ड वर्क जैसे आप लोग करते हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब उसमें होता है। और हम लोगों के हर एक के भीतर में पोटेंशियल है। हम लोग भारत में इतना पोटेंशियल है हम लोगों के भीतर में कि बाहर के देशों की टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को, है ना। 1980 में जब अमेरिका ने हम लोगों को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो थी वो हम लोगों को देने से इनकार कर दिया था 1980s में। उसके बाद में इंडिजिनियस डेवलपमेंट कर दिया इसरो के साइंटिस्ट ने, और वही नासा डायरेक्टर आकर के वहां पर जब देख के गए इसरो में, तब तो उन्होंने कहा कि यस वी डिनाइड दिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अब वो इंडिजिनियस इन लोगों ने डेवलप कर दिया इसको, तो पोटेंशियल है। और फिर एक बार मैंने इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में उसमें एक आर्टिकल आया था इसके ऊपर में, इफ इंडिया हैज टू ग्रो यूएस मस्ट डिनाई, ऐसा करके उसका आर्टिकल था। हाँ, तो हम लोगों के ऊपर जितने सैंक्शंस लाएंगे, जितने प्रकार के डिनाई करेंगे हम लोगों को, उतनी भीतर की हम लोगों की क्षमता बढ़ती जाएगी और हम लोग अपने पैर पर खड़े रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात वो रहती है कि हर एक के भीतर जो पोटेंशियल है उसको स्वामी विवेकानंद जी ने कभी इग्नोर नहीं किया, है ना। बहुत, क्योंकि वो भी अमेरिका गए, वहां पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट से भी वो मिले हैं। प्रोफेसर विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट, उस समय के बहुत बड़े वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे। फिर निकोलस टेस्ला, जिसके नाम पे आपका टेस्ला के नाम पे यूनिट भी है, आप इंजीनियरिंग के लड़के हैं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है वो टेस्ला, 1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। हाँ, तो टेस्ला जो है वो स्वामी जी से मिले थे 1896 में फरवरी, उस समय एक सोशल गैदरिंग में। और उसके पहले स्वामी जी जब न्यूयॉर्क में सेटल हो गए थे 1895 में दिसंबर जनवरी के इसमें पीरियड में, तब सांख्य फिलोसॉफी जो थी, जिसको वेदांतिक कॉस्मोलॉजी बोलते थे, उसके ऊपर लेक्चर्स दे रहे थे। और वो ही वाज ब्रिंगिंग आउट द थ्योरी ऑफ आवर ओल्ड उपनिषद्स, सांख्य फिलोसॉफी की, आकाश प्राण वगैरह ये सब। हाँ, और उसकी वो एक्सप्लेनेशन। और टेस्ला, जिसको खाने के लिए समय में नहीं मिलता था, ऐसा साइंटिस्ट, he was graduated from Prague University in electrical engineering and shifted to United States in 1880। और उसके बाद में उन्होंने अपनी ये सेटअप की थी, लेबोरेटरी सेटअप कर दी थी। जीनियस, सुपर जीनियस साइंटिस्ट वो था। तो वो मॉट मेमोरियल हॉल जो है वहां पर न्यूयॉर्क सिटी में जो है, वहां पर स्वामी जी दोपहर में संडेज वहां पर लेक्चर्स दिया करते। 3 बजे का समय रहता था दोपहर का, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज कम लेट for that because attending his own laboratory work and etc. Or he used to stand outside the halls, packed halls, or at standing outside he will listen to lectures of Swami Vivekananda. And he said that how scientific are the Swamiji's lectures on Sankhya philosophy.
वेदांतिक कॉस्मोलॉजी इसको बोलते हैं। और उनके साथ में ये मुलाकात हुई थी 1896 फरवरी में। दोनों में बहुत लंबी डिस्कशन हो गई थी और फिर टेस्ला ने कहा था कि आप जिसको आकाश और प्राण की थ्योरी जो बता रहे, आई विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट मैथमेटिकली। स्वामी बहुत खुश हो गए थे कि कम से कम वेदांतिक कॉस्मोलॉजी विल बी फाउंडेड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, साइंटिफिक फाउंडेशन। एंड फिर उन्होंने और टेस्ला ने उनको इनवाइट भी किया था क्या कि आप हमारे लेबोरेटरी में आकर के नेक्स्ट संडे मिलिएगा, क्योंकि मैं आपसे मिलने का चांस जो है छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा करके उन्होंने बताया था। तो गए थे स्वामी जी उसके पास में, बट टेस्ला कुड नॉट प्रूव इट एंड स्वामी जी वाज डिसअपॉइंटेड। वो लेटर स्टोरी है कि वो तभी भी उन्होंने कहा कि मैटर एंड फोर्स दे आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग, ऐसा करके दे कैन नॉट बी कंबाइंड इनटू वन, दैट इज एनर्जी लेवल। और फिर बाद में आकर के आइंस्टाइन वगैरह इन लोगों ने उसको ये किया था। लेकिन बहुत बाद में जस्ट उनका शरीर जाने के पहले 1940 के पहले की बात है, उन्होंने वो पेपर पब्लिश किया था जिसमें ये स्वामी जी के द्वारा ये जो लेक्चर्स दिए गए थे उसमें से उन्होंने उद्धृति की थी उसकी, आकाश प्राण ये सब की उसकी उद्धृति देख करके उसको कहा था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हमारे भीतर में इस प्रकार की जो ये पोटेंशियलिटी जब है हम लोगों के भीतर में, तो बाहर के इसमें जाने की जरूरत नहीं है ना। हम सबके भीतर में ये पोटेंशियलिटी है, बस उसको इट शुड बी डायरेक्टेड इन प्रॉपर चैनल्स। यही हम लोगों को उसको याद रखना है, क्योंकि जो यू विल बी बिकमिंग द ब्यूरोक्रेट्स व्हाट दे कॉल है ना, ब्यूरोक्रेसी। लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी का जो पॉलिटिकल एफिलिएशन जिसको कहा जाता है, इट शुड नॉट हैपन। इंडिपेंडेंटली हम लोगों के पास, हम लोगों को ये दिया गया है, विवेक बुद्धि दी गई है, और हमारे ही भाई लोगों के प्रति, जैसे समाज तो अपना ही परिवार ही तो है, सबके प्रति हमारा एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, और जिसके इसमें हम लोगों को ये सब कुछ करना है, इसकी परिधि में हम लोगों को सब कुछ करना है, तो हम लोगों को विवेक की जरूरत रहती है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से, क्योंकि आप लोग इसमें जाएंगे, अगर आगे चल करके भी इसको क्लियर करके आप आईएएस बनेंगे या और भी पदाधिकारी बनेंगे, तो आपको ये बात जरूर आप सभी लोग याद रखिएगा कि वो बोलते हैं ना कि सर्विस टू द सोसाइटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हम लोगों ने मिला है ना, हम लोगों को सब कुछ मिला है, सोसाइटी से हम लोगों को मिला है। विद्यार्थी जीवन ही है वो क्या कि सब समय लेना, उस समय हम लोग केवल लेते रहते हैं। हम लोगों के प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, उन लोगों से ज्ञान लेते रहते हैं, और भी हमारे पेरेंट्स है, वो हम लोगों को सब हमारी नीड्स वगैरह सब कुछ देते रहते हैं। वी आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम सोसाइटी। नाउ द टाइम विल कम आफ्टर व्हेन यू बिकम ग्रेजुएट मींस दिस पर्टिकुलर पोस्ट व्हेन यू विल होल्ड, तो दैट टाइम विल कम दैट यू हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो वो हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये अगर हम लोग याद रखें तो बहुत ही अच्छी सोसाइटी। क्योंकि एक स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था, वो हम लोग पूरा कर सकते हैं कि इस पूरे भारत को हम लोग, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बार केंद्र भारतवर्ष है। उन्होंने अपने प्रोफेसी में कहा था कि आई सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा, वो ये नहीं कहा कि मैं आई इमेजिन, आई सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया द मोर ग्लोरियस एंड मोर पावरफुल, इस प्रकार से। तो उन्होंने जो ये इन्विसाज किया था, उन्होंने जो ये सपना जो इन्विसाज, वो हम लोगों के लिए था। तो आपको, क्योंकि एक जब पदाधिकारी जब बनता है तो आपके हाथ में बहुत सारे पावर्स रहते हैं, और उसमें हम लोग उसमें विस्तार कर सकते हैं, एज वेल एज उसमें अच्छी बात भी ला सकते हैं, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, है ना। शिक्षा का विभाग ही देखिएगा, आज शिक्षा के विभाग में ही कितने सारे, मतलब हर साल में हजारों की लाखों की संख्या में ग्रेजुएट हो रहे हैं, है ना। सब बाहर पढ़ रहे हैं, और कुछ बेरोजगार रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन शिक्षा का जो मूल उद्देश्य जो है, जैसे कि आपको यहाँ मिलती है, जैसे कि इसका जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ये जो उसका केंद्र है, स्पिरिचुअलिटी विशेष करके जो हम लोगों को मिलता है, तो वो उसका केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, और उसके सब कुछ रिवॉल्व करना चाहिए उसका शिक्षा। नहीं तो शिक्षा क्या हो जाती है, स्वार्थों पर बन जाती है। शिक्षा हम लोगों को सिखाएगी क्या
कि ग्रेजुएट बनो, पदाधिकारी बनो, अपने फैमिली के लिए सोचो, पैसा कमाओ, लेकिन वो ये नहीं, निस्वार्थ भाव कभी नहीं देती। तो निस्वार्थ भाव को अगर ये करना है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है अनसेल्फिशनेस, जिसको कहा है निस्वार्थ, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग बट पीपल डोंट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट, ऐसा कहा है उन्होंने। तो अनसेल्फिशनेस अगर हमारे जीवन में अगर आ जाती है तो दैट्स अ ग्रेट पावर, ग्रेट पावर। आप अगर 10 मिनट भी किसी के लिए सोचते हैं अनसेल्फिश, यानी कि उसको मदद करना या किसी भी तरह से, उसके लिए नॉट नेसेसरी कि आपके पॉकेट्स में हजारों रुपए चाहिए, नहीं, आप में संवेदनशीलता है तो आप उसको, यू कैन रेंडर योर सर्विस टू योर ब्रदर्स, टू योर फेलो स्टूडेंट्स, और अपने समाज के प्रति कर सकते हैं। उसके लिए हजारों रुपए पॉकेट में रहने की जरूरत नहीं है। जो भी अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम लोग, है ना। उसके लिए आईएएस नहीं बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, आईएएस बने तो और भी अच्छा, क्योंकि आपके हाथ में वो सब कुछ आ जाता है, पावर्स आ जाती है, जिसका आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पर है, एकेडमिक्स इसमें भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी करिएगा, और एक्सेलेंसी जो आप करना चाहते हैं, एक्सेलेंसी जिसको है, वो आप लोगों को अचीव करने की हमेशा आपके मन में वो भाव आप पोषण कीजिएगा। आपने उस समय आपका जन्म हुआ था नहीं पता, 1997 में वो जो श्रीहरिकोटा से पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, IRSD-1 उसका नाम था, वो पहली बार उस समय इंदर कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर कस्तूरी रंगन ये थे, चेयरमैन थे उससे, फिर यूजीसी के भी चेयरमैन बने। हाँ यूजीसी, और फिर उसके साथ उनके मिशन कंट्रोलर में मिस्टर राधाकृष्णन भी थे, वो उनका ये थे। तो उस समय वो सक्सेसफुली लॉन्च किया था, अपने इंडियन इसरो साइंटिस्ट ने डेवलप किया हुआ जो सैटेलाइट था, वो सक्सेसफुली लॉन्च किया था। विदिन 8 मिनट्स इट वाज पुट इनटू द ऑर्बिट, ऑल्दो देयर वाज सम लीकेज ऑफ हीलियम गैस इन इट, बट उसको उन्होंने रिस्टोर किया था, बैक किया था। तो कमेंटेटर उस समय कमेंट्री कर रहा था, और इट वाज नेशनली टेलीवाइज्ड, हम लोग उसको देख रहे थे ऑन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे देख रहे थे। तो कमेंटेटर ने बहुत सुंदर कमेंट की थी उसमें, और उसने कहा था, इसरो साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स के बारे में कहा था कि एक्सीलेंसी हैज बिकम एन हैबिट, एक्सीलेंसी हैज बिकम एन हैबिट। आज तक मैंने ये वाक्य जो है अपने मन में इसको रखा है। 97 It was 97. I don't know whether you were born that time or not. लेकिन वो मैंने उसको देखा था, और वो जब सुना मैंने, I really treasured that sentence in my heart. Excellency should become an habit. तो आप लोगों का भी वही मोटो रहे, एक्सीलेंसी शुड बिकम एन हैबिट। तो हर क्षेत्र में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड वही शीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आप जाएंगे, अगर लापसना में पहले ही लिखा हुआ है, उसमें आप वीडियो में भी देखिए, आपके यूट्यूब में लिखा हुआ है शीलम परम भूषणम, पहला उद्देश्य वाक्य लिखा हुआ है उसमें। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज बोलते हैं सच, क्योंकि उन्होंने उसको इंस्पायर किया था इसको। तो ये लॉन्ग एसोसिएशन है रामकृष्ण मिशन का इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ये आज की ना, ये नहीं है, केवल लापसना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इवन IISc बैंगलोर, टाटा का जो हुआ था जमशेदजी टाटा के साथ में, स्वामी जी ही वाज ए को पैसेंजर टिल योकोहामा। और फिर टाटा क्यों जा रहे थे जमशेदजी टाटा वहां पर, कि वो दिया सलाई खरीदने के लिए जा रहे थे, और स्वामी जी ने बनाया कि दिया सलाई खरीदने के लिए आप जापान जा रहे हैं, योकोहामा जा रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ ये नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय का समाज ये था, 1893 की बात थी, उस समय इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था और साइंस वगैरह नहीं था, तो दोनों में बहुत काफी लंबी चर्चा हुई थी। तो स्वामी जी ने कहा था कि आई विल गिव यू एन आइडियाज अबाउट दिस, और फिर बाद में टाटा ने उनको लेटर भी लिखा था कि आप हमको ये कर दीजिएगा, और बस स्वामी जी की प्रेरणा से और इंस्पिरेशन से वो IISc बैंगलोर हुआ है। जब उनकी सेंटेनरी हुई थी 1908 में, शायद 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने देखते रोमेश टू स्वामी विवेकानंद दैट ही वाज द इंस्पिरेशन फॉर दिस IISc बैंगलोर के लाइफ साइंसेस के बारे में। आज वो इंस्टीट्यूट कितनी बड़ी हो गई। तो आप कोई भी स्फीयर कीजिए नेशनल, इसमें ह्यूमन लाइफ का या इंडियन नेशनल लाइफ का, ऐसा ग्लोब की तरह अगर स्वामी जी ने उसको अपने हाथ में रखा था, और उसके सभी जो पहलू है ना, इकोनॉमिक हो, सामाजिक हो, अर्थनीति हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, कला हो, साहित्य हो, इतिहास हो, विज्ञान हो, सबके ऊपर उन्होंने सर्च लाइट डाला है,
सबके ऊपर। बस आप पढ़िएगा उसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये नहीं, क्योंकि आप बड़े हो पहली बात, और ये स्तर पर आप आ चुके हो। तो छोटे बच्चे होते तो अलग बात होती, लेकिन आपको अभी एक जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एज वेल एज एनलाइटेंड सिटीजन दोनों बनना है। इसीलिए ये सब कुछ आपके सामने इन्होंने ये किया है, अरेंज किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ संचालक जी को कि आपने हमको बुलाया और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। સિંહણનું દૂધ સોનાના પાત્રમાં જ ટકે. તમે તો બધા સિંહો ને સિંહણો જ છો, હે? નરસિંહ મહેતાએ કીધું છે, નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો, તેજ હું શબ્દ બોલે, શબ્દ બ્રહ્મ છે. આ બંને પૂજ્ય સ્વામીજી અને શ્રીનંદજી જે કઈ બોલી ગયા છે એ હવે બ્રહ્મ થઈને ફર્યા રાખશે. અને એનો સંદર્ભ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો પરમ દિવસે નહીં તો 2 વર્ષે, 2 વર્ષે નહીં તો 20 વર્ષે એ આવશે અને આવશે. લિખિત અંગ હું આવું છું. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી આપણી એકેડેમીને પાવન કરી, શ્રીનંદજી, પ્રમેશજી અને ભાઈ દીપકભાઈ સ્વામીજીને લઈને અહીંયા સુધી પધાર્યા, આપણને જીવનનું ભાથું આપ્યું. અમારામાંથી કેટલાયના મનમાં જે ઉદ્વેગ હતો એને આપે શાંત કર્યો. એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, બહુ બહુ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ. So thank you so much for being with us. Thank you very much. Thank you.